Welcome students and parents. I hope you all are doing well. I hope you enjoy your summer vacations. This is your holiday pack of English grade 3. I'm Miss Nimbra. I'm your English planner teacher. Here is your summer pack. Write your name, write your class, section, campus and student ID. Students, if you don't have your student ID, please take it from your Challan forms and you can take it your report cards as well. So next page, page number 2, you have instructions for students and parents. Firstly, students, please read instruction carefully before solving the summer pack. Next, you have activity number 1, date. Write your date here. So look at the given picture and describe what is happening. You have been given a picture. Look at the picture, students, carefully and describe it in your own words. For example, what is happening in this picture? Yeah, how many people are there? What are they doing? What are they saying? So you have to write in your own words. Okay. On the next page, you have activity number 2 about a paragraph. So you are given a paragraph on a page. First, read the paragraph carefully. Okay? And below the paragraph, you have some MCQs. For example, this passage is mostly about spider colors, spider webs या spider eggs. तो आपने उसको solve करना है. First मैंने आपके लिए solve कर दिया है. And on the next page, आपके पास you will have some questions and क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चे जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे आप उसमें से फाइंड आउट करेंगे और आप उसमें से फाइंड आउट करके लिखेंगे. ठीक है. Turn the page. Wow, this is very fun and interactive activity. Activity number 3, school items. As you know, you already know, okay, what is the school items? For example, pen, pencil, ruler, highlighters, scale, books, marker. तो ये सब आपने क्या करना है, मैंने फर्स्ट आपके लिए एक सोल्व किया हुआ है. आपने सेम एज इट इज सोल्व करना है. पेंसिल फाइंड आउट करनी है एंड ड्रॉ अ प्रॉपर कलर पेंसिल से आप यूज कर सकते हैं. ड्रॉ अ प्रॉपर कलर लाइन विद योर स्केल. ठीक है. On the next page, activity number 4, draw a lines from words to their pictures. As it is also a very fun and interactive activity. Alligator, camel, giraffe, kangaroo, lizard, penguin. You have 5 to 7 pictures. बच्चे आपने क्या करना है, alligator को for example मैंने find out करके मैच किया. इसी तरह से आप camel को find out करेंगे. कलर पेंसिल से proper margin and जो है वो आप स्केल के साथ लगाएंगे. कि इससे क्या होगा कि आपका काम जो है वो बहुत अच्छा लगेगा और जाहिर सी बात है तो उसके फिर आपको ग्रेड्स भी अच्छे मिलेंगे. On the next page, you have activity number 5. Students must write date on every page. ठीक है. Activity number 5, word constructions. अब what is the meaning of construction? Construction means working, जिस पे काम हो रहा है. जिस तरह हम कहते हैं कि ये घर बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो उसी तरह से हमारे पास ना नीचे 16 वर्ड्स हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है. आपने उसको कंस्ट्रक्शन में लेके आना है. वो आप कैसे लेके आएंगे देखें. Use the letters below to form as many words as you can in 5 minutes. You can only use each letter in the list one of once of form a word. For example, आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है EYIESA. आपने इन्हीं वर्ड्स से यूज करके 16 वर्ड्स बनाने हैं जो विद इन 5 मिनट्स आपके माइंड में आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, yes, see, I, say. इसी तरह के कोई वर्ड्स आगे आपने कंप्लीट करने हैं, वो 16 कंप्लीट हो जाएंगे. On the next page, you have page number 10, activity number 6, write 10 lines on myself. आपने अपने about 10 lines लिखनी है about your father, about your parents, about your siblings, about your dislikes and likes. Write 10 lines, 10 to 12 lines about yourself. ठीक है, in your own words. Next, you have activity number 7. This is also a very funny and very interactive activity. So write short story of each picture. You have 3 pictures on your page. So आपने क्या करना है कि हर स्टोरी हर पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने
4 to 5 लाइन्स में एक स्टोरी डिस्क्राइब करके लिखनी है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर्स एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर. ओके, on the next page, page number 8, you have activity number, page number 12, sorry, activity number 8. Paste the pictures of the following animals and describe them. Paste the pictures. For example, you have first is monkey. फर्स्ट मंकी की पिक्चर आपने इधर पेस्ट करनी है एंड राइट 4 to 5 लाइन्स अबाउट मंकी एंड नेक्स्ट यू हैव अबाउट 4 to 5 लाइन्स अबाउट गोट एंड पेंगुइन एंड काउ एलिगेटर एंड लाइन. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऐसे ही पेजेस हैं, आप वहां पे इसको लिखेंगे. अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास एक्टिविटी नंबर 9, कंप्लीट each sentences with a common noun or a proper noun. In the box, write C if you wrote a common noun and write P if you wrote a proper noun. For example, as you know already कि हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन फर्स्ट असेसमेंट में इसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है एंड आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से आता होगा. तो आई थ्रू द बॉल टू डैश, आगे क्या लिखा हुआ है, पर्सन. अब आप यहाँ पे किसी भी पर्सन का नेम लिख सकते हैं, आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं. सो अब अगर हम किसी पर्सन का नेम लिख रहे हैं, हमने स्पेसिफिक पर्सन बता दिया है, तो फिर वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन. एग्जैक्टली. तो हम आगे क्या लिखेंगे बॉक्स में, पी. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आप करेंगे. नेक्स्ट पेज पे देखें, आपके पास है एक्टिविटी नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग इज, एम एंड आर. रिमेंबर एवरीवन, इज एम आर क्या होते हैं, आर्टिकल्स. और ये आर्टिकल्स हमने कहाँ पढ़े हैं, फर्स्ट असेसमेंट में. जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 ही होते हैं. वो कौन होते हैं, इज, एम एंड आर. एंड आप सबको पता है कि इज एम आर जो है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 बॉयज हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी है, वो आपने इज एम आर कंप्लीट कर से लगा के कंप्लीट करनी है. जैसे कि हेलो माय नेम डैश नजीब, my name is, ठीक है, I dash from Australia, I am from Australia. ठीक है, इसी तरह से आपने इस एम आर पुट करके अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट यू हैव एक्टिविटी नंबर 11. दिस इज वेरी interesting activity. Use the following words in your sentences. ये following words को आपने अपने sentences, as you know students, sentence making तो very easy for you because हम ये इतनी दफा क्लास में करते हैं, आप सबको अच्छे से पता है. तो आप book a slice a jar, better draw a clear margin line on each sentence and then आप जो है वो हर सेंटेंस को बनाएंगे, एक एक ही सेंटेंस बनाएंगे और वो अपने अकॉर्डिंग आपने देखना है. पेज नंबर 19 पे भी आपके पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके भी आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है. नेक्स्ट यू हैव एक्टिविटी नंबर 20. ये बहुत अच्छी एक फनी एक्टिविटी है जिसमें आपको वो कह रहे हैं, इमेजिन यू हैव अ टाइगर एज अ पेट एंड गिव योर पेट टाइगर अ नेम. आपने अपने इमेजिन करें यू हैव अ पेट टाइगर और आप उसको क्या नेम देंगे. फॉर एग्जाम्पल शेरू, राजा, खान, टिफी, टॉफी, कोई भी आप उसको नेम दे सकते हैं. एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट. आप यहाँ पे पिक्चर भी बना सकते हैं अपने टाइगर पेट की जो आपके पास है. आपने इमेजिन करना है आपके पास टाइगर पेट है, वो क्या खाता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे सोता है, कहाँ कब सोता है. तो आपने उसके बारे में इसको डिस्क्राइब करना है इस पेज पे. ठीक है, आप पहले स्केल से प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड देन यू डिस्क्राइब इट. On the page number 21, you have activity number 13. Choose any 2 of the books and read them thoroughly during the summer break. आपने इन 5 स्टोरीज में से कौन सी 2 सेलेक्ट करनी है जो आपने समर ब्रेक में रीड करनी है. एंड देन राइट अ शॉर्ट एसे ऑन बुक कैरेक्टर्स आई वुड लाइक टू मीट. आपने क्या करना है कि बच्चे select, after selecting only 2 stories, you have to talk about your favorite character from that story. You have to explain why you like that story and why you choose it and write it in your own words. ठीक है, on the next page, page number 14, my daily activities. अब my daily activities में हम क्या लिख सकते हैं कि write a paragraph about your daily activities in summer vacation. Take help from the following examples. अब आपको स्टार्ट बता दिया गया है, आपने स्टार्ट कैसे करना है. I wake up at 6 o'clock. I brush my teeth and take my breakfast with my family on the dining table, or my mother makes
ब्रेकफास्ट फॉर अस। तो आपने अब नेक्स्ट आपने आगे जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। मॉर्निंग आपका रूटीन क्या है, समर ब्रेक में आप कितने टाइम बजे उठते हैं, उठने के बाद आपकी क्या रूटीन है, आपका स्टडी टाइम कितना है, आपका प्लेइंग टाइम कितना है, आपका स्क्रीन टाइम कितना है, वो आपने सारा इस पेज पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है, अपने वर्ड्स में। On the next page, activity number 15, tell about your favorite dish. Wow, yummy. Tell about your favorite dish. Paste a picture of it and write why you like it most and also share its recipe. अब क्या होगा, रेसिपी तो आपकी मदर से आपको बता सकती हैं, लेकिन फेवरेट डिश तो आप बताओगे ना अपनी मदर को कि आपकी कौन सी फेवरेट डिश है। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक बिरयानी, अगर हमारी फेवरेट डिश बिरयानी है तो हम यहाँ पे उसके पीछे पेस्ट करेंगे, यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो। सो टेल अस व्हाई यू लाइक बिरयानी एंड शेयर अबाउट इट रेसिपी, ठीक है। पेज नंबर 24 पे भी आप सेम अपना जो आपकी फेवरेट डिश है उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑन द पेज नंबर 25 यू हैव एक्टिविटी नंबर 16, सर्कल द कलेक्टिव नाउन्स इन ईच सेंटेंस। अब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स व्हाट इज द जो कलेक्टिव वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है कि किसी भी चीज की कलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो हमें सबके बारे में बता रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह आपकी क्लास है, हम कहते हैं कि क्लास 3D। अब 3D जो वर्ड है वो क्या बता रहा है कि आपके सब जो 3D के बच्चे हैं वो ये हैं, 3A के ये हैं, 3B के ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो आप सबके नेम्स जो है वो 3D के जो है वो कलेक्टिव नाउन और 3D उसका एक मेन थीम बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास देखिए, आपके पास लिखा हुआ है पेज सेंटेंस नंबर 1 में, फॉर एग्जांपल मैंने 3 सेंटेंसेस आपके लिए सॉल्व किए हुए। नेक्स्ट आप खुद करेंगे, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स वॉक अक्रॉस द लैंड। अब आर्मी ऑफ सोल्जर्स जो है वो हमें बता रहे हैं कि सोल्जर्स की जो आर्मी है वो सब उनका ग्रुप एक जो है वो क्या कर रहा है, वॉक अक्रॉस द लैंड। यू हैव डन बाय योर ओन, ठीक है। नेक्स्ट 11 आप खुद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, here it is, it's your summer pack of English. You have only 16 activities. Enjoy your summer vacations and happy advance Eid Mubarak. So enjoy your vacations and stay hydrated. You know कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप घर में रहें, अपने घर में अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, and enjoy your summer vacations. Good luck from my side. Thank you. Allah Hafiz everyone.